Okay, Assalamu alaikum everyone. I think we are good to start today's session. And ask a session ke andar we are going to talk about the chapter that is called the transmission. Now, when we talk about the transmission chapter, इसके अंदर आपके पास serial and parallel communication आती है हमारे पास. इसके अंदर हमारे पास half duplex, full duplex and simplex communication आती है. We are also having the USB and the IC comparison, universal serial bus and integrated circuits. We have also have error detection and correction methods in this chapter. So let's start. Start करते हैं हम लोग यहाँ पे अब. Let me set my screen so that you guys can ask different questions if you want during the lectures. ठीक है बच्चों? So starting with the first step that is called we are having, you guys all know because it's a revision session. So आज की session के अंदर मैंने यहाँ पे multiple past paper questions extract करे हुए and I will be explaining each and everything. हर चीज मैं explain करता रहूंगा while solving the questions. कुछ questions मैंने खुद develop करे, like this is one of the questions जो मैंने खुद बनाया भी यहाँ पे कल रात को जब मैं फाइल क्रिएट कर रहा था. एंड आई थिंक बाकी क्वेश्चंस बड़े सिंपल से क्वेश्चंस हैं, पास पेपर्स की भी हैं, कुछ काफी पुराने क्वेश्चंस है. लाइक दिस इज वन ऑफ द क्वेश्चंस, दिस इज क्वेश्चन आई हैव टेकन फ्रॉम 2011. काफी पुराना क्वेश्चन है बट इट्स अ गुड क्वेश्चन, सो दैट्स व्हाई यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे. सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पार्ट, ये बता रहा है डेटा ट्रांसमिशन इन बोथ डायरेक्शंस, data is being transmitted in both directions at the same time. So you all know that at the same time दोनों direction के अंदर data is being traveled using the full duplex. Data transmission in one direction only, so that is of course simplex communication data. In simplex communication we are having data transmission in only one direction. Data transmission from different sources sent at the same time in both directions. So ये कोई भी आपका मैच नहीं कर रहा properly, so we are going to ignore this point. Data transmission in both directions but only in one direction at a time. So of course this is your half duplex. Now we are having a telephone conversation. अब आपको examples को भी क्या करना है, मैच करवाना है. So full duplex telephone conversation is an example for the full duplex. So we have matched here. Data transmission check. So check आपका किसी के अंदर भी count नहीं होता. Two-way radio communication. So whenever we are talking about the radio communication, so radio communication is actually a part of, it's a two-way radio communication. So it's a part of half duplex. And the last one, global positioning satellite signals. So GPS के signals जो होते हैं they are simplex, one direction only. And इसी के साथ आपको इस क्वेश्चन के ऊपर एग्जामिनर is awarding you 6 marks. उजैर, उमर, अहमद, आप सबने आंसर्स करे, थैंक यू. और उमर ने यहाँ पे एक्सेस का बोला. उमर बेटा आज शाम तक इंशाल्लाह ताला आई विल बी गिविंग यू द एक्सेस, बिकॉज कल रात को मुझे फाइल मिल गई थी आप लोगों की आईडीज की एंड ऑल दैट. सो आई विल बी गिविंग यू एक्सेस इन इवनिंग बेटा, ठीक है. शाम तक मैं आप लोग को ग्रुप के ऊपर सेंड कर दूंगा कि हाउ टू एक्सेस योर सॉर्ट. मूविंग फॉरवर्ड, अब एक और क्वेश्चन आया हमारे पास. स्टेट व्हाट इज मेंट बाय यूएसबी. अब यहाँ पे एक सिंपल सा क्वेश्चन है 1 मार्क का. अगर आप इसकी फुल फॉर्म भी लिख दें सो यू विल बी गेटिंग फुल मार्क्स. यूनिवर्सल, ये तो कॉमर्स के बच्चों को भी पता ही होता है, यूनिवर्सल सीरियल बस. अब ये बता रहे कि 2 बेनिफिट्स आप लोग को बताने.
यूएसबी कनेक्शन के बिटवीन अ कंप्यूटर एंड अ डिवाइस। अब देखिए बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे मिस्टेक बच्चे जनरली क्या करते हैं, ये क्वेश्चन मैंने इसलिए पिक करा है बिकॉज बच्चे यूएसबी के बेनिफिट्स बताना शुरू कर देते हैं। वी डोंट नीड टू टेल द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग द यूएसबी। हमें यूएसबी कनेक्शन मींस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट यूएसबी पोर्ट। जो आपने देखा है यूएसबी का पोर्ट होता है इस तरह एक, तो हमें इस पोर्ट के बारे में बताना है। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे बताया कि whenever a USB is connected between a computer and a device, so I need to discuss those benefits, those two benefits बेटा। ठीक है, the first benefit is it can be inserted in one direction only. So USBs can be inserted in one direction only. सिर्फ एक डायरेक्शन के अंदर आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं। सो no one can insert in wrong direction. Another benefit of using the USB is no need to install any additional software. Just plug and play option is available. ठीक है, राहिमा ने हमें बताया डेटा कैन ट्रांसफर एट डिफरेंट स्पीड रेट्स। Yes, that is also fine. From incorrect corrections are being made perfect. So these are the answers that you can write. अब ये बता रहे हैं कि parity check जो होता है may not identify the bit that has been transmitted incorrectly. Describe one situation in which this could occur. अच्छा एक बात याद रखिएगा बेटा, ये जो मैंने क्वेश्चन सारे डिजाइन करे हुए, ये जो मैंने एक्सट्रैक्ट करे हुए, ये आपका रिमेंबर, अगर आप ये सारे क्वेश्चंस करते हैं तो आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो रहा है। मैंने इसके अंदर बहुत ही शायद मुश्किल से एक आध टॉपिक छोड़ा हो, लेकिन आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं सारे टॉपिक्स यहाँ के अंदर यहाँ पे कवर अप कर लिए। इनडायरेक्टली आप लोग का सारा रिवीजन भी होता रहेगा पैरेलल के अंदर। ठीक है, सो वन सिचुएशन यू गाइस नो कि अगर दो बिट्स आपस में लेट सपोज मैंने अप्लाई किया यहाँ पे इवन पैरिटी चेक एंड माय डेटा वाज 10101, so this was my data, this data will be transmitted correctly। बट जब डाटा मेरा जा रहा था तो हुआ क्या, ये दोनों बिट्स क्या हो गई, स्वैप हो गई। स्वैप कहते हैं या वी कॉल इट ट्रांसपोज। ये दोनों बिट्स क्या हो गई, ट्रांसपोज हो गई। नाउ माय डाटा वाज 101011। अब स्टिल नंबर ऑफ वंस आर 1 2 3 4 इवन है, so my data is going to pass, but I know कि there was an error in the data। आपके पास एरर था डाटा के अंदर, बट स्टिल योर सिस्टम इज नॉट गोइंग टू डिटेक्ट सच एन एरर। सो दिस इज द लिमिटेशंस ऑफ द पैरिटी चेक, वन ऑफ द पैरिटी चेक। आई विल टेल यू बेटा, मैं आपको बता दूंगा, ग्रुप पे इन्फॉर्म कर देता हूँ। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये चीज नोट कर ली। इफ टू बिट्स आर ट्रांसपोज्ड, ब्रैकेट में स्वैप लिख देगा ताकि और अच्छा एग्जामिनर को पता चल जाए, देन
सॉरी माय बैड, मैं एक चीज यहाँ पे लिखना भूल गया। देखिए आंसर करें तो ऐसा आंसर करें कि बिल्कुल प्रॉपर हो। इफ टू if two different bits if two different bits are transposed, then parity check fails। ठीक है, और भी बहुत सारे रीजन होते हैं हमारे पास यहाँ पे। मुझे याद है जब मैं आप लोगों को टॉपिक पढ़ा रहा था तो मैंने जरूर बताए होंगे। सो लेट्स रिकॉल दोज पॉइंट्स एज वेल। पीसीआर देख लेते हम लोग यहाँ पे, सूडो कोड्स तो नहीं। डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन, डेटा ट्रांसमिशन समवेयर हियर, यहाँ पे कहीं ना कहीं मैंने एक्सप्लेन किया होगा in parity check portion। And here you go, these are the limitations। if two bits, this is the point that मैंने जहां पे मेंशन किया 1D parity check के अंदर fails if two bits are transposed। ठीक है, मैंने ये वाला पॉइंट लिखा है। एक और पॉइंट आप लोग क्या लिख सकते थे, this is the point, if we are having error in more than one bit then parity check might fail। ये कैसे होता है, ये ऐसे होगा आपके पास, let's suppose this was my data, this was my data, और मेरे पास डाटा ट्रेवल कर रहा था। नंबर ऑफ वंस मैंने काउंट करने, 1 2 3 4। आई हैव अप्लाइड इवन पैरिटी चेक, एज्यूम करते हैं तो मेरा डाटा क्या होगा, बिल्कुल परफेक्टली पास हो जाएगा। अब क्या होगा, जब मेरा डाटा ट्रेवल कर रहा था इस बिट में एरर आ गया। नाउ माय डाटा बिकम्स 1 0 0 0 1 0 1 0। नंबर ऑफ वंस मैंने काउंट करे 1 2 3। मेरा डाटा क्या होगा, सर आपका डाटा पास नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर इवन, सॉरी ऑड। अब मेरा डाटा ट्रेवल करते 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 इस बिट में तो एरर था ही, इस बिट में भी एरर आ गया एंड माय डाटा बिकम्स 1 1 0 0 1 0 1 0। नाउ लेट्स चेक number of ones 1 2 3 4। although I am having error in 2 bits, but still my data is going to pass because the number of ones are even। so this is also one of the valid point that you can write in the examination, okay, if we are having error in more than one bit then your parity check might fail। okay okay we have few questions, let me answer those questions quickly then we are going to move forward beta। सर कनेक्शन, अच्छा 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 अच्छा, किंजा ने किया सर, अगर 2 1 बिट्स आ जाएं तो भी यही होगा ना। एग्जैक्टली किंजा बेटा, आपने यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए मैसेज किया है, सो योर आंसर विल बी राइट। अब्दुल्ला इज आस्किंग सर कैन वी राइट चेक सम बाइट वाज डिफरेंट फ्रॉम ऑन द अदर साइड। यार अब्दुल्ला कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट हो जाएगी बेटा आपकी ये थोड़ी, बिकॉज आप चेक सम बाइट की बात करेंगे तो थोड़ा सा एग्जामिनर की अप्रोच चेकसम की तरफ चली जाएगी। ठीक है, सो कर सकते हैं लेकिन थोड़ा सा अवॉइड करेगा बेटा इसको, ठीक है, सारी स्टेटमेंट को। ओके वेयर वर वी, सो आप लोग को यहां तक क्लियर है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 2 तक क्लियर है। लेट्स मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बता रहे कि इन पैरेलल कम्युनिकेशन, अच्छा ये ऐसी मैंने रैंडम क्वेश्चंस डाले कुछ एमसीक्यूज टाइप के, सो ये बच्चों वाले, ये आपके सिलेबस के अंदर इस टाइप के क्वेश्चंस कभी नहीं आते और ना आएंगे, लेकिन मैंने ऐसी रैंडमली डाल दी, मेरा दिल चाह रहा था तो थोड़ा सा क्विक, ये आउट ऑफ द सिलेबस कुछ पॉइंट्स है जो आप लोगों को पता होने चाहिए, ठीक है ना, सिलेबस से थोड़ा सा बाहर है ये, तो ये पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए बेटा। इन पैरेलल कम्युनिकेशन ईच बिट रिक्वायर्स अ ट्रांसमीटर एंड अ रिसीवर। ठीक है, ऑफ कोर्स ट्रू, in every communication parallel हो या serial हो, we need a transmitter and the receiver बेटा। ठीक है, what is the cable that carries the information in parallel communication? So of course whenever we are talking about the information, we are talking about the data, so it's data bus। ये थोड़ा सा आगे के चैप्टर का क्वेश्चन आ गया, लेकिन still you should know which of the following is a false reason।
in parallel communication not being used for long distance. ठीक है, cost वैलिड रीजन है, सिग्नल अटेन्युएशन मतलब सिग्नल के अंदर डिस्टर्बेंस, सिग्नल के अंदर आपका एरर्स, ठीक है, वैलिड रीजन है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन चैनल्स वैलिड रीजन है, स्लो स्पीड, सो दिस इज अ फॉल्स रीजन बेटा। यू गाइज नो, अगर आप पैरेलल और सीरियल कम्युनिकेशन को कंपेयर करें, सो पैरेलल कम्युनिकेशन इज फास्टर एज कंपेयर टू द सीरियल कम्युनिकेशन, सो स्लो स्पीड इज द फॉल्स रीजन, हमने यहां पे नोट करा। एंड द लास्ट वन, which bit is transmitted first in the serial communication, so beta this is least significant bit। ठीक है, छोटा सा एक पॉइंट आप लोग का, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट क्या होती है? फॉर एग्जांपल इफ आई एम हैविंग अ नंबर, मेरे पास ये एक बाइनरी पैटर्न है, सो इस बिट को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस बिट एज मोस्ट significant bit, and this bit is called least significant bit. So whenever we are transmitting data, least significant bits are being transmitted first. ठीक है, तो ये बात आप लोगों को पता होनी चाहिए। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। यस आमना, योर आंसर वाज राइट। अब ये वियर्ड सा नेम है, ऑड्रे, ऑड्रे, आई थिंक आई एम प्रोनाउंसिंग इट राइट। ऑड्रे वांट्स टू सेंड अ साउंड फाइल टू निको यूजिंग ईमेल। ठीक है, ओके, ऑड्रे इज शी, the file is too large to attach to the email, so Audrey decides to compress the files. She uses lossy data compression to reduce the file size of the sound file. Describe how lossy data compression reduces the size of the file. तो बेटा 4 नंबर का सवाल है, एन अमेजिंग क्वेश्चन, जबरदस्त सा सवाल है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब देखिए, लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन आप लोग को यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। अब बच्चे क्या करते हैं? बच्चे लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन एक्सप्लेन करके चले जाते हैं, बोलते हैं सर हमारी डिस्टिंक्शन आएगी, और डिस्टिंक्शन नहीं आती, डिस्टिंक्शन नहीं आती। रीजन क्या होता है बेटा? यहाँ पे आपको सिनेरियो भी तो देखना है, आपको ऑर्डर की बात करनी है, आपको यहाँ पे सिनेरियो देखना है, आपको बड़ा प्रॉपरली यहाँ पे एक्सप्लेन करना है अपना आंसर, ठीक है ना। सो लेट मी राइट द होल आंसर बाय माई सेल्फ। मैं जरा खुद आप लोग को लिख के दिखाता हूँ कि हाउ टू आंसर दीज क्वेश्चन। हाँ, जकी ने यहाँ पे बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, जकी ने सही लिखा है, अच्छा लिखा है जकी। मैं तुम्हें 3 नंबर देता इस बात के ऊपर, बड़ा अच्छा पॉइंट लिखा है, अच्छा आंसर किया तुमने, 1 नंबर फिर भी नहीं देता। सो मैंने यहाँ पे बता दिया, इन लॉसी डेटा compression we remove या सॉरी we apply perceptual compression। मे भी पॉसिबल बहुत सारे बच्चों ने पहली दफा ये नाम सुना हो, परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन, और जिन बच्चों ने सुना है तो उन लोग के लिए रिवीजन हो जाएगा। सो एक्चुअली लॉसी डाटा कॉम्प्रेशन के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन। नो, व्हाट इज परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन बेटा? व्हाट इज परसेप्चुअल कॉम्प्रेशन? वी remove the bits that are difficult for humans to understand।
फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को बेटा याद हो, ह्यूमन एयर जो है आपके पास, ह्यूमन एयर, नॉट एनी क्रिएचर, ह्यूमन एयर की आपका रेंज होती है 20 हर्ट्ज से हर्ट्ज। दिस इज द रेंज हियरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन ईयर। अब आप लोग के पास अगर कोई साउंड अवेलेबल है, लेट्स से 22 हर्ट्ज का है, सो ह्यूमन ईयर सुन सकता है, लेकिन एक हेल्दी ह्यूमन ईयर सुन सकता है वो। अगर कोई बहुत छोटा बच्चा या बहुत एजेड पर्सन है, सो वो ये साउंड नहीं सुन सकता, तो हम लोग उस साउंड को टारगेट करते हैं जो डिफिकल्ट होता है फॉर द ह्यूमन ईयर टू बी हर्ड। हम उस साउंड को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं, और जो साउंड ह्यूमन ईयर सुन सकता है, हम उस साउंड को छोड़ देते हैं। तो दिस इज called the perceptual compression, and this is how we compress data in lossy data compression. So अब फर्दर आप लोग के पास यहाँ पे बात करनी है आप लोगों ने, 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बिकॉज सो फर्दर यू कैन राइट ओवर हियर मैक्सिमम 90% compression can be applied not a big difference in the compressed file और एक और फाइल पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं, data that is compressed is removed permanently। ठीक है, तो 4 मार्क्स के लिए मैंने आप लोग को जितने मैक्सिमम पॉइंट्स में यहाँ पे लिखवा सकता था, मैं आप लोग को लिखवाए, बड़े अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं। परसेप्चुअल कंप्रेशन अप्लाई करते हैं, मैक्सिमम यू कैन अप्लाई 90% कंप्रेशन ऑफ अ टू अ फाइल। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होता आपके पास कंप्रेस फाइल के अंदर, बिकॉज हम लोग टारगेटेड साउंड को रिमूव करते हैं। ओरिजिनल फाइल कैन नॉट बी रिटेन्ड, और जो डाटा आप लोग रिमूव करते हैं या कॉम्प्रेस करते हैं इज रिमूव्ड परमानेंटली। नाउ यू कैन नॉट रिटेन द ओरिजिनल फाइल अगेन। ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स दैट यू नीड टू राइट, और इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप लोग पैराग्राफ फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बोथ आंसर्स आर फाइन। ओके, वी हैव अ क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल ईजान, आपका एग्जामिनर आपको ज्यादा फेवर देता है अगर आप पॉइंट्स में आंसर करें। सर कैन वी राइट आंसर इन पेपर 1 इन पॉइंट्स, और नहीं, बिल्कुल किंजर, मैं आप लोगों को यही बताना चाह रहा हूँ कि पॉइंट्स में आंसर आप लोग का एग्जामिनर ज्यादा एंटरटेन करता है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, नो इश्यूज बेटा, नो इश्यूज एट ऑल। ज्यादा फेवरेबल आपका पॉइंट्स के अंदर आंसर होते हैं। आप अगर अपना, अगर इसी तरह एग्जामिनर को पैराग्राफ चाहिए होता, तो वो आपकी मार्किंग स्कीम के अंदर भी हमेशा क्या करता, आपको पैराग्राफ फॉर्म में आंसर मांगता। वो बोलता है पॉइंट्स सारे कवर अप होने चाहिए बच्चों के, इधर इट्स अ पैराग्राफ और इधर आप डायरेक्ट बुलेट पॉइंट्स पे लिख दें, बोथ वर्क्स टोटली फाइन। लेट्स मूव फॉरवर्ड, क्योंकि मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, जो जिस बच्चे की डिस्टिंक्शन आई है उसका पेपर भी आप लोगों को दिखा सकता हूं, तो वो भी आप लोगों को दिखाऊंगा। खैर, ट्रू एंड फॉल्स, MIDI files are actual music notes in a compressed format. So this is true or false? So of course this is false. MIDI की जो फाइल्स होती है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट डिजिटल इंटरफेस, दे आर नॉट एक्चुअल म्यूजिक फाइल्स बेटा। ठीक है, वो क्या होती है आपके पास, दे आर बाइनरी फाइल्स। सो दिस इज फॉल्स। JPEG फुल फॉर्म, कोई बच्चा मुझे बताए JPEG की, जो मेरा स्टूडेंट नहीं था और अब वो मुझसे पढ़ रहा है, तो JPEG की फुल फॉर्म बताए जरा।
नेट से देख के नहीं, जल्दी से बताओ जिसको आती है। परफेक्ट किंजा बेटा, और कोई, एनीवन एल्स? ईजान ने भी हमें यहाँ पे, ओह ईजान ने थोड़ा सा नया कर दिया। ठीक है, मूसा राइट आंसर, सभी राइट आंसर। सो जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सो जेपेग बता रहे कि JPEG is an example for lossless data compression. So this is also false. JPEG के ऊपर क्लास जो compression टेक्निक अप्लाई जाती है, अप्लाई की जाती है, that is lossy data compression. JPEG के ऊपर भी lossy अप्लाई की जाती है, MP3 के ऊपर भी lossy अप्लाई की जाती है। लॉसलेस सिर्फ हम लोग टेक्स्ट फाइल्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। MIDI अगर उसको कंप्रेस करना है MIDI को, तो आप उसके ऊपर फिर यू कैन अप्लाई आमना बेटा लॉसलेस आप अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज द डाटा इज इन बाइनरी फॉर्मेट। बाइनरी में जब डाटा है तो आप उसके अंदर पैटर्न को पिक करके आप उसको लॉसलेस अप्लाई कर सकती हैं। नहीं, डायरेक्टली कंप्रेस नहीं होती, इट्स एक्चुअली अगेन इट्स अ फॉर्मेट। फाइल को स्टोर करने का एक फॉर्मेट है ये आपके पास, म्यूजिकल फाइल्स को स्टोर करने का एक फॉर्मेट है, इट्स अ प्रोटोकॉल। अगेन दो चीजें, ये आपके पास प्रोटोकॉल भी है एंड फॉर्मेट भी है। बता दो इसके बारे में, अभी एक क्वेश्चन मैंने आगे रखा हुआ है, so I will be explaining MIDI in detail. MP4 files are examples of lossy file compression. This is of course true, and I have missed one. MP3 files on an average 90% smaller than the files stored on a CD. ये कंट्रोवर्शियल है, ट्रू फॉल्स दोनों हो सकता है। सो ऑफ कोर्स ट्रू, बिकॉज आपको पता है जब आप MP3 फाइल्स को कंप्रेस करते हैं तो आप लोग अप्लाई करेंगे लॉसी डाटा कंप्रेशन, एंड यू कैन कंप्रेस टिल 90% तक आप इसको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ा मैं यहाँ पे। नाउ द एग्जामिनर इज आस्किंग अबाउट अ फ्यू फॉर्मेट्स। तो आप लोगों को फॉर्मेट्स पता होने चाहिए। पिक्चर्स का एक फॉर्मेट है आपके पास JPEG, टेक्स्ट का फॉर्मेट होना आपको पता होना चाहिए, लाइक PDF भी है आपके पास, और X, so you can write any sound का dot MP3, video का dot MP4, or if you know any other format you can write a suitable format as well over here. ठीक है, हाँ dot TXT you can also write. Dot PDF you can also. These are the all work. Perfect, fine. Moving forward, question number 6. Now we are having one of the question of check digits. अब देखिए check digit का क्वेश्चन जब भी आप लोग के पास आएगा, रिमेंबर दिस क्वेश्चन विल वेरी। ये क्वेश्चन आपके पास वेरी करेगा। सर क्या मतलब, क्या बोल रहे हैं वेरी करेगा? ये बेटा हर दफा आपके पास जो कन्वर्जन का मेथड होगा, जो कैलकुलेशन का मेथड होगा, इट मे बी डिफरेंट, इट मे डिफर। देखिए अभी आपके पास इस क्वेश्चन के अंदर द डिजिट पोजीशंस आर 1 2 3 4 5 6 7 8। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पता आपके पास जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए वहां पे डिजिट पोजीशंस हो आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये वेरी कर सकता है, घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी क्वेश्चन होगा आपको पूरी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे गिवन होगी। ठीक है, आपको पूरी एक्सप्लेनेशन गिवन होगी, जस्ट आप लोग को क्या करना है, रीड आउट करना है और सॉल्व करना है। दिस इज मोर लाइक अ इंग्लिश ट्रांसलेशन देन सॉल्विंग अ कंप्यूटर साइंस क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए मेथड आप लोग को गिवन है। द मेथड इज check digit is calculated as follows. Each digit in the number is multiplied by its digit position. Fine. So these are the digit positions: 1 2 3 4 5 6 7. The 7 results are then added together. So multiply करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, 4 4 I guess 12 4 25 0 and 7 8 5s are 45 45 के बाद 56 56 के बाद हो जाएगा ये 56
तो ये हो जाएगा आपका 64। नहीं, मैं गलत कर रहा हूँ शायद। तो दिस विल बी 64 आई गेस। इनको सम अप करें, मुझे बताएं जरा सम क्या आ रहा है इसका। मेरी मैथ्स कमजोर है, आप लोग मुझे सम करके बताएं व्हाट इज द सम ऑफ दिस। जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं आ रहा हूँ। ओके, वेयर आई वाज। मैं बता रहा था मेरी कैलकुलेशन बड़ी वीक है, सो आप लोग जरा कैलकुलेट कर लें। सो इसका सम क्या आएगा हमारे पास, द सम इज 105। ठीक है, अब ये बता रहे जो भी आपका रिजल्ट आया डिवाइडेड बाय 11। सो मैंने इसको डिवाइड किया बाय 11। 105 डिवाइडेड बाय 11 यहां कर लेते हैं, 105 डिवाइडेड बाय 11। सो 11 9s are 99। मैंने माइनस किया, द रिमाइंडर इज 6। अब ये बता रहे द रिमाइंडर गिव्स यू द चेक डिजिट, और ये बता रहे इफ द रिमाइंडर इज 10 द चेक डिजिट इज कॉल्ड एक्स। तो हमारा रिमाइंडर आ गया, हमारा चेक डिजिट इस केस में क्या आया बेटा, हमारा चेक डिजिट आ गया 6। एंड वी आर गुड, परफेक्ट, फाइन। सो दिस वाज द मेथड। मैंने क्या किया, मेथड को सिर्फ क्या किया यहाँ पे यूज करा। अब ये बता रहे कि एक ऑपरेटर ने 1 2 3 4 5 6 7, एक ऑपरेटर ने क्या किया, जस्ट की टाइप द फॉलोइंग नंबर, सर्किल बिलो इफ द चेक डिजिट इज करेक्ट और नॉट, इफ द चेक डिजिट इज इनकरेक्ट। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इस क्वेश्चन में छोटा सा आई थिंक मिस आउट कर दिया मैंने, यहाँ पे एक्स आया, बता। तो चेक डिजिट आपका क्या है, एक्स है, मतलब योर चेक डिजिट इज 10। तो हमारा रिमाइंडर 10 आना चाहिए। सो लेट्स कैलकुलेट आवर स्टफ। 3 2 4 1 5 0 8। सो डिजिट पोजिशंस क्या है इसकी हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7। मल्टीप्लाई किया, 3 + 4 + 12 + 25 + 0 + 56। मुझे सम बताएं जरा जल्दी से क्या आ रहा है। आप लोग सम कैलकुलेट करें, सम कैलकुलेट करके मुझे बताएं व्हाट्स द सम फॉर दिस पार्ट। So the remainder is 104. Oh, sorry, the sum is 104. So 104 divide by 11. 9s are 99 again. Remainder is 5. So again, this number is incorrect. Reason, the remainder should be 10. लेकिन हमारा remainder क्या आ रहा है, हमारा remainder आ रहा है 5. So this means हमारा ये क्या है, incorrect number है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, so you should be able to perform such questions as well. Moving forward, question number 7, आप लोग को यहाँ पे बताना है, there are 5 statements about serial half duplex data transmission, serial and half duplex.
सीरियल एंड हाफ डुप्लेक्स, हमें बताने के विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड विच स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। अरे भाई आरएल ने यहाँ पे एक मिस्टेक पकड़ ली भाई। आरएल बता रहे हैं कि सर 7 8 64 है, तो वट एवर कर लेना यार, इसको सम अप कर लेना, जो भी आपका आंसर आ रहा होगा ये इनकरेक्ट ही आएगा, तो बिल्कुल आरएल अवेल दैट। अच्छा जी, अब ये बता रहे डाटा इज ट्रांसमिटेड इन वन डायरेक्शन, ओके, दिस मींस इट्स सीरियल वन बिट एट अ टाइम। तो ये स्टेटमेंट सीरियल है लेकिन हाफ डुप्लेक्स के लिए नहीं है बेटा, दिस इज फॉर सिंप्लेक्स, सो दिस इज false. Data transmitted in both directions, fine, multiple bits at a time. So this is serial, sorry half duplex तो है लेकिन serial नहीं हो गया, यहाँ पे parallel आ गया, so यहाँ पे हमने false किया ऐसे भी। Data is transmitted in one direction only, multiple bits at a time, again false. Data is transmitted in both directions, okay, but only one direction at a time, one bit at a time, perfect. This is the example for serial and half duplex. तो हमारे पास यहाँ पे serial भी हो गया और half duplex भी हो गया, this is perfect true. Data is transmitted in both directions but only in one direction at a time, multiple bits at a time, so this is again false. So आपके पास this is only one statement is true, बाकी सारी statements क्या होंगी, it will be false. अरेल बेटा तुम मल्टीप्लाई गलत कर रहे हो। अच्छा जी, अब देखिए देयर इज वन मोर क्वेश्चन, आपके पास एक और क्वेश्चन आया यहाँ पे, दिस क्वेश्चन इज फॉर 8 मार्क्स। अब आपका एग्जामिनर क्या बोल रहा है, देयर आर 4 मेथड्स फॉर एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन। कौन कौन से मेथड्स हैं, पैरिटी चेक, चेक डिजिट, चेक। अब आपको चारों मेथड क्लास क्या करने, एक्सप्लेन करने फॉर 2 मार्क्स। दो नंबर्स के लिए आपको क्या करना है, चारों मेथड एक्सप्लेन करने। नाउ लेट मी शो यू, लेट मी टेक यू बैक टुवर्ड्स माय चेक सम स्टफ, जो मैंने क्लास के अंदर पढ़ाया था बच्चों को डिटेल के अंदर काफी। सो चेकसम की एक्सप्लेनेशन बेटा मैंने लिखी हुई है पूरी, आप लोग अभी स्क्रीनशॉट ले लें या अभी मैं आप लोग को सेंड कर देता हूं या कुछ ना कुछ हम लोग इसको, ये फाइल वैसे अपलोड है आप लोग की, जब मैं आईडी क्रिएट करूंगा आज शाम तक, तो यू कैन डाउनलोड दिस फाइल फ्रॉम हियर। आप लोग ये फाइल यहां से डाउनलोड कर लेगा। Why it's taking so long? Log in. You guys are in O levels. Transmission file, it must be over here. Data formats, data transmission. So you can download the file from here, beta. Here you go. Mac lectures, class lectures, class lecture by Mac. So this is the file. तो आप लोग ये फाइल जब ओपन करेंगे तो आपके पास जो क्लास के लेक्चर्स हैं वो सारे आ जाएंगे, दे विल बी अपीयरिंग ओवर हियर एंड यू कैन सिंपली डाउनलोड द फाइल। आप यहाँ से अपनी फाइल डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। तो एक्चुअली ये दिस इज द फाइल, ये जो मैंने पूरा क्लास के अंदर पढ़ाया है ये पूरी फाइल है। तो जब आप लोग अपनी कैम्ब्रिज की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, तो मैं आप लोगों को बच्चों को पहले भी बता चुका हूँ, सबसे पहले आप लोग किस चीज से तैयारी करेंगे अपनी, मैथ लेक्चर सबसे पहले देखना है। सेकंड, आप लोग जो मैं आप लोग को मैंने रिवीजन गाइड प्रोवाइड करी हुई है, आप लोग रिवीजन गाइड से पढ़ेंगे, मेमोराइज करेंगे पूरी रिवीजन गाइड। थर्ड थिंग विल बी पास्ट पेपर्स, और फोर्थ थिंग होगी आपके पास आपकी कोर्स बुक। कोर्स बुक को सबसे एंड में देखना है। सबसे पहले आप लोग मैथ लेक्चर्स, देन रिवीजन गाइड, देन पास पेपर्स एंड देन आप लोग अपनी बुक को अगर देखना हो तो देख लेगा, वरना जरूरी नहीं है आप लोग को आपकी बुक को इतना गो थ्रू करना।
ओके सो मैं आप लोग को बता रहा था, यहाँ पे आप लोग की मैंने सारी एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है सबकी। पैरिटी चेक क्या है आपके पास, चेकसम क्या होता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं आप लोग को दिखाऊं, यहाँ पे चेकसम मैं बहुत अच्छा मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हुआ था। होता क्या चेकसम, अगर आप लोगों ने यहाँ पे चेकसम के अंदर बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, दे हैव उनके टीचर्स उनको एक मेथड सिखाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर कौन सा मेथड। सो बहुत सारे बच्चों के टीचर्स ओ लेवल के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि वो क्या करते हैं, आपको एक मेथड सिखा देते हैं कि बेटा चेकसम क्या होता है, वो 256 से आप लोग मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, फिर वो आएगा, आंसर आएगा, फिर उसको एड अप करें। पता नहीं क्या क्या अजीब सा एक मेथड है, आपकी कोर्स बुक के अंदर भी पुरानी वाली दिया हुआ है, लेकिन दैट इज समथिंग एल्स। चेकसम अगर एक्सप्लेन करने के लिए आपका एग्जामिनर बोल रहा है, सो दैट इज समथिंग डिफरेंट। ठीक है, चेकसम होता क्या है, सिंपल वर्ड्स के अंदर, whenever we are transmitting data, whenever we are transmitting data, हमारे पास दो लोग होते हैं, एक होता है हमारे पास सेंडर एंड एक होता है हमारे पास, हाँ किसी बेटा वो 256 वाला मेथड काम आएगा, क्या पता आपका एग्जामिनर कोई क्वेश्चन दे दे आपको और वो मेथड पूरा फिर वो एक्सप्लेन करेगा। जैसे चेक डिजिट के अंदर क्वेश्चन देता है ना वो, कि पूरे मेथड एक्सप्लेन करता है कि दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट द स्टफ। तो वो उसी तरह क्वेश्चन देके आपको पूरा पहले एक्सप्लेन करेगा, इट कैन बी अ डिफरेंट मेथड, इट कैन बी द सेम मेथड, और फिर वो आपसे बोलेगा कि चेकसम कैलकुलेट करके बता दो कि वैलिड है या इनवैलिड है। तो मेथड आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो मेथड गिवन होगा। ठीक है, अभी हमें चेकसम पढ़ना है। चेकसम क्या होता है, वेयर इज द रिवीजन गाइड, ग्रुप पे अभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोगों को सेंड करता हूँ स्ट्रेटजी, थोड़ी देर में भेज देता हूँ बेटा। ठीक है, क्लास एंड होने के बाद भेज दूंगा मैं आपको। सो रिवीजन गाइड व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रही है, सर्कुलेट हो रही है, तो मैं आप लोगों को भी सेंड कर दूंगा। सो वेयर आई वाज, मैं आपको बता रहा था चेकसम के बारे में। सो सेंडर पे साइड पे आप लोग क्या करते हैं, जो भी आपको डाटा सेंड करना है, यू आर गोइंग टू ऐड ऑल दैट डाटा। जब आप डाटा ऐड करेंगे तो यू आर गोइंग टू ऑब्टेन वन थिंग एंड दैट इज कॉल्ड checksum byte after adding all the data that you need to send। फिर आप अपना डाटा और चेकसम बाइट क्या करेंगे, सेंड कर देंगे रिसीवर को। रिसीवर साइड पे आप क्या करेंगे, वापस से अगेन ऐड करेंगे अपने डाटा को, और आपके पास अगेन क्या ऑब्टेन हो जाएगा, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन अ चेकसम बाइट, बट दिस टाइम द चेकसम बाइट इज एट द रिसीवर एंड। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आप दोनों को कंपेयर करेंगे, सेंडर चेकसम बाइट को और रिसीवर चेकसम बाइट को। अगर ये दोनों इक्वल है, दिस मींस योर डाटा इज हैविंग नो एरर्स, आपके डाटा में कोई एरर नहीं है। और अगर ये आपके पास डिफरेंट हो गया, तो दिस मींस योर डाटा इज हैविंग एरर। और एरर की केस के अंदर आपका रिसीवर वापस से रिक्वेस्ट करता है सेंडर को टू रीसेंड द सेम डाटा अगेन। ठीक है, अगेन लेट मी गिव यू अ क्विक रिकैप। सेंडर साइड पे सारा डाटा आपने ऐड करा, यू ऑब्टेन अ चेकसम बाइट, आपने डाटा ट्रांसमिट कर दिया। रिसीवर साइड के ऊपर आपने वापस से डाटा ऐड करा, यू अगेन ऑब्टेन अ चेकसम बाइट। आपने सेंडर और रिसीवर की चेकसम बाइट्स को कंपेयर किया, इफ दे आर इक्वल दिस मींस देयर इज नो एरर इन द डाटा, एंड इफ दे आर डिफरेंट दिस मींस डाटा के अंदर आपके पास एरर है। और आप लोग क्या करेंगे, आपका रिसीवर रिक्वेस्ट करेगा कि सेम डाटा मुझे क्या करो, वापस से अगेन रीसेंड करो। तो दैट इज द मेन कॉन्सेप्ट बिहाइंड द चेकसम। अब सर आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई, हमें समझ में तो आ गया हाउ वी आर गोइंग टू राइट द स्टफ। तो बेटा मैंने आप लोग को पूरा लिखवाया हुआ वर्डिंग की फॉर्म में, द होल सिनेरियो। सो दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू एक्सप्लेन द चेकसम स्टफ। ठीक है, सिमिलरली व्हेन वी टॉक अबाउट द एआरक्यूज, सो एआरक्यूज में मैंने वर्डिंग की फॉर्म में आप लोगों को कहीं ना कहीं लिखवाया होगा जरूर। नहीं लिखवाया होगा। सो ये मैं आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में लिखवा देता हूँ, यहाँ पे जितना शॉर्ट करके समराइज करके मैं आप लोगों को लिखवा सकता हूँ, मैं आप लोगों को यहाँ पे लिखवा देता हूँ। तो स्टार्टिंग विद द पैरिटी चेक। तो पैरिटी चेक क्लास क्या होता है आपके पास, इन दिस मेथड वी चेक number of ones in the given data. If the number of ones should be even
for even parity check and odd for odd parity check. We also have block parity check, in which we check both rows and columns for number of ones. ठीक है. Now when we talk about the check digit used to find the missing digit, by applying a method for calculating the check digit, can also be used to find whether to find a number is correct or इनकरेक्ट. ठीक है. चेकसम मैंने आप लोगों को दिखा दिया था, बहुत डिटेल में मैंने आप लोगों को लिखवाया है, आप लोग वही वर्डिंग शॉर्ट करके लिख सकते हैं. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द ARQs, सो ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग को यहां पे बताना होगा अबाउट टू थिंग्स. डेटा इज सेंड and receiver gives acknowledgement if that is positive. Next set of data is sent. If acknowledgement is negative, then same set of data is sent. Time frames are also defined at both ends. तो बेटा इस पार्ट के अंदर दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है. आपको यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट की बात करना जरूरी है, पॉजिटिव एंड द नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट्स, एंड टाइम फ्रेम की बात करना जरूरी है. तो दीज आर द कीवर्ड्स ऑन विच यू आर गिवन नंबर्स व्हेनेवर वी आर टॉकिंग अबाउट द ARQs. तो आप डेटा सेंड करते हैं, रिसीवर आपको एक्नॉलेजमेंट देता है. अगर वो एक्नॉलेजमेंट पॉजिटिव है, दिस मींस आप लोग अगला डेटा सेंड करेंगे. अगर वो एक्नॉलेजमेंट नेगेटिव है, आप लोग सेम पेयर ऑफ डेटा क्या करते हैं, सेंड करते हैं. एंड द प्रोसेस गोज ऑन एंड टाइम फ्रेम डिफाइन होते हैं आपके पास बोथ एंड्स के ऊपर, कि एक लिमिटेड टाइम होगा, उस टाइम के अंदर ही आपको डेटा रिसीव करना ही करना है. सो परफेक्ट एक्सप्लेनेशन. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. अब हमारे पास सिर्फ मैचिंग और कुछ क्वेश्चन बचे छोटे छोटे से. सो लेट्स सी. अभी एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था आपके पास, आप लोग को शो करना था डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड सिंपलेक्स ट्रांसमिशन. फर्स्ट यू नीड टू शो सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन. सिंपलेक्स डेटा ट्रांसमिशन के अंदर बेटा आपके पास
दोनों जगह एरोस बनेंगे। ये कंप्यूटर ए भी डाटा सेंड कर सकता है कंप्यूटर बी को, और कंप्यूटर बी भी डाटा सेंड कर सकता है कंप्यूटर ए को, लेकिन इन बिटवीन बोथ ऑफ देम देयर विल बी और ऑपरेशन, या तो कंप्यूटर ए भेजेगा या कंप्यूटर बी भेजेगा बेटा, ठीक है, इन सिंप्लेक्स। When we talk about duplex, it's a full duplex means, so it's a two-way communication. कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी आपस में एक दूसरे को डाटा सेंड कर सकते हैं यूजिंग द सेम मीडियम. So this is the diagram. This is the arrow that we are going to use for the full duplex. And when we talk about the half duplex, so computer A can send data to computer E. Computer B can also send data to computer A. And the operation between both of them will be AND operation. मतलब दोनों भेज सकते हैं एक दूसरे को थ्रू डिफरेंट चैनल्स. सो बेटा ये याद रखने, देखिए सिर्फ 4-5 एरो बनाने के ऊपर आपका एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग यू 6 marks. सर इनकी रियल लाइफ एग्जांपल सर्जियल इज आस्किंग व्हाई नॉट सिंप्लेक्स, सिंप्लेक्स कंप्यूटर टू प्रिंटर, ठीक है, वन वे कम्युनिकेशन है आपके पास. सिमिलरली रेडियो वन वे कम्युनिकेशन है, यू कैन ओनली लिसन टू द रेडियो. आप ये नहीं बोल सकते भाई ये कौन सा सॉन्ग चला दिया, ये मुझे पसंद नहीं है. और आप कॉल करके बोल सकते हैं लेकिन आप डायरेक्टली नहीं बोल सकते. फुल डुप्लेक्स टेलीफोन कन्वर्सेशन, फुल डुप्लेक्स है आपके पास. हाफ डुप्लेक्स वॉकी टॉकी, वॉकी टॉकी इज एन एग्जाम्पल फॉर द फुल डुप्लेक्स बेटा, ठीक है. सो हमने यूज भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया, बता दिया. नाउ लेट्स सी अनदर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन है. अब यहाँ पे आप लोग को टिक करना है कि ये आईसी के बारे में बात हो रही है, यूएसबी के बारे में बात हो रही है. कंसिस्ट ऑफ मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स, so this is integrated circuit IC, has serial transmission, so USB has the serial transmission, has parallel transmission, so class ICs has the parallel transmission. Difficult to maintain synchronization, so you guys know synchronization maintain करना difficult होता है हमारे पास in parallel communication, और parallel communication किसके अंदर होती है, ICs के अंदर होती है. so that's why this is an IC. more chances of errors, ठीक है. सो चांसेस ऑफ एरर्स आपके पास ज्यादा कहां होते हैं, पैरेलल कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं. सो आईसीज के अंदर आपके पास देयर आर मोर चांसेस ऑफ एरर्स, सो दिस इज आल्सो एन आईसी. अच्छा जी, अब हम लोग एक और क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा बिफोर वी कंप्लीट दिस क्वेश्चन नंबर 10 अभी मैं आप लोग को करवाता हूं क्वेश्चन 10 को, बट बिफोर दिस let's 11 and 12 बाकी क्वेश्चंस वाइंड अप हो जाएं. So reduction of the file size by permanently removing the redundant, permanently removing, you guys know this is lossy data compression, file compression format designed to make the photos files smaller. So you guys know this is JPEG. File compression system for music which does not noticeably affect the quality of the sound. So MP3, MP3, MP3. So it should be MP3. Hardware component that allows the user to communicate between the computer and the operating system. So this will be, of course, interface. File is reduced in size for transmission and storage, and then put it back again in to its identical form or original form. So this is lossless. Signals sent to the processor, again this is your interrupts. Interrupts are the signals that are generated from the software or hardware side to stop the execution for the microprocessor. And the last one, of course, is standard adopted for the electronic music industry for controlling the devices such as sound cards and all that. So this is MIDI.
6 marks for this part. एक और क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे. So let's see. Several bits of data are sent through several wires in both directions, but not at the same time. So this is parallel, but half duplex. Several bits of data are sent through several wires in both directions at the same time. So this is parallel and full duplex. लेकिन यहाँ पे हमारे पास option नहीं है. So we are going to cut off this option. An even or odd number of bits set to 1 in a byte used to check if the byte has been transmitted correctly. So you guys know this is parity check. 1 bit sent at a time over a single wire in one direction only. So this is serial simplex transmission of data. An additional digit placed at the end of the number to check that the number has been entered correctly. So this is check digit. और check digit मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है, तो मैं बेटा इसको मिस आउट करूंगा. A value transmitted at the end of a block of data, it is calculated using other elements of the data stream and is used to check for transmission errors. So this is checksum. An error detection method that uses the response and timeout when transmitting data. If the response is not sent back to the center in the agreed amount of time, data is automatically resent. So this is your ARQs. So a perfect question again. ये क्वेश्चन आपके पास 5 मार्क्स का था. तो इस तरह के क्वेश्चन भी बेटा आप लोग के पास आते हैं. Now let's see the last question. Okay, we have a question. सर इससे पिछले वाले क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लेना है सर. आपने बेटा I will be sharing this file to the WhatsApp group after solving the whole question, so you can वहां से देख लेगा. सर चेकसम एंड चेक डिजिट के डिफरेंशिएट कैसे किया जा सकता है, उजैर इज आस्किंग. अच्छा सवाल है. हाँ उजैर, मैं भी लिखवाता हूँ इसको क्लास के एंड में, देखता हूँ या बाद में आप लोग को लिखवाता हूँ कुछ ना कुछ. वैसे तो बड़ा वियर्ड डिफरेंस होगा दोनों का, लेकिन स्टिल एक क्वेश्चन है, सो व्हाई नॉट, वी कैन राइट द एक्सप्लेनेशन, वी कैन राइट द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम. अच्छा जी, अब ये बता रहे हैं एक टेक्स्ट है आपके पास. द टेक्स्ट इज, देखिए मैंने आप लोगों को लॉसी डाटा कंप्रेशन एक्सप्लेन किया था. मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं हर चीज कवर अप करूंगा इस टॉपिक के अंदर. अब यहाँ पे आ गया आपके पास, वी नीड टू एक्सप्लेन लॉसलेस डाटा कंप्रेशन. एक टेक्स्ट है आपके पास, इज स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल. she sells seashells on the seashore. The shells that she sells are seashells, I am sure. ठीक है. So बड़ा जबरदस्त टेक्स्ट है आपके पास. Explain how lossless compression technique would compress this file. ठीक है बेटा, मैं आप लोग को पूरा प्रॉपर मेथड सिखा रहा हूं कि हाउ द compression, lossless compression will take place. ठीक है, हाउ द लॉसलेस कंप्रेशन विल टेक प्लेस, मैं आप लोगों को पूरा एक्सप्लेन करके दिखा रहा हूं. और इसकी वर्डिंग जो है मैं आप लोग को लिखवा दूंगा, बिकॉज मैंने पहले से ये बच्चों को लास्ट टाइम करवाया था. लेकिन ये हो क्या रहा है, किस तरह हो रहा है, ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए. पहले वर्डिंग तो मैं आप लोगों को लिखवा दूंगा, लेकिन मेथड आप लोगों को पता होना चाहिए कि हाउ दिस कंप्रेशन इज टेकिंग प्लेस. हियर यू गो. करते क्या है बेटा, हम लोग यहाँ पे हम लोग अपने पूरे पैराग्राफ को नंबरिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं. सर कैसे? दिस इज हाउ वी कन्वर्ट द पैराग्राफ इन नंबरिंग फॉर्म. लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 and 18. So how many words are there? We are having 18 words over here. अब हम लोग क्या करते हैं, आप लोग को पता है ये शी जो लिखा हुआ है ना, शी, ये शी लिखा हुआ है. शी कितने बाइट्स के ऊपर है? कोई बच्चा मुझे बता सकता है? बिट्स या बाइट्स? हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन शी? हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन शी?
मेरे स्टूडेंट्स तो जवाब दें कम से कम। आमना ने आंसर राइट आंसर दिया है बेटा, गुड। अच्छा, किंजा ने भी राइट जवाब दिया, लेकिन किंजा ने बिट्स के अंदर जवाब दिया, ठीक है। इबाद ने भी राइट जवाब दिया है, क्या बात है। आई एम आस्किंग द आंसर इन बाइट्स। हाउ मेनी बाइट्स आर देयर इन शी? जबरदस्त आरेल, मेरे बच्चे ने गलत जवाब दे दिया। आरेल यार, तुम तो नाक कटवा दोगे भाई मेरी, ठीक है। सो हाउ कैन, मतलब कोई लॉजिक तो बताओ कि 6 बाइट्स कैसे। भाई एक आपके लेटर को, एक कैरेक्टर को सेव करने के लिए वी नीड 1 बाइट। सो 1 कैरेक्टर एस, 1 कैरेक्टर एच, 1 कैरेक्टर ई। सो हाउ मेनी बाइट्स आर रिक्वायर्ड फॉर स्टोरिंग शी? सर 3 बाइट्स, ठीक है। अब देखिए शी कितनी दफा आया हुआ है आपका, कितनी सारी दफा आया हुआ है। अब हम स्टोर किस तरह करते हैं, हम लोग एक टेबल बना लेते हैं बेटा। हम लोग क्या करते हैं, ये लॉसलेस कंप्रेशन सिखा रहा हूं मैं आप लोगों को, हाउ वी अप्लाई लॉसलेस कंप्रेशन ऑन डाटा। छोटा पड़ जाएगा टेबल, खैर लेट्स सॉल्व दिस टेबल। सबसे पहले मेरे पास आया शी, द फर्स्ट लेटर वॉज शी। और ये अब कहां कहां पर है? सो सर शी पहली पोजीशन पे था, और शी 11th पोजीशन पर है, और आई थिंक 2 जगहों पर है आपके पास शी आ गया, ठीक है। सो आपने यहाँ पे बताया, द पोजीशन आपने नोट कर ली यहाँ पे 1 एंड 11। अब जरा आपने यहाँ पे टेक्स्ट ये रहा आपका, वर्ड ये रहा, दिस इज योर वर्ड एंड दीज आर द पोजीशंस जो आपके पास यूज हुई हैं, ठीक है, दिस इज द पोजीशन। अब मैं इसका टोटल साइज निकालूं अगर, तो देखिए बड़ा आराम से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, सुकून से कैलकुलेट करेगा। 1 2 3, 1 बाइट, 2 बाइट, 3 बाइट्स, 1 बाइट फॉर स्टोरिंग दिस वन, एंड 2 बाइट्स फॉर स्टोरिंग 11। सो टोटल कितनी बाइट्स हो गई हमारे पास? 3 4 5 6 बाइट्स। तो टोटल बाइट्स फॉर स्टोरिंग शी विल बी 6 बाइट्स। हमने क्या किया, हमने उसकी पोजीशन नोट कर ली बेटा। हमने क्या किया, हमने उसकी पोजीशन नोट कर ली। हमने वर्ड नोट करा, द वर्ड वॉज शी, और उसकी पोजीशन हमने नोट कर ली। अब अगला वर्ड देखा हम लोगों ने यहाँ पे, द नेक्स्ट वर्ड वॉज सेल्स। सो इसकी पोजीशन क्या हुई? 2, यू कैन सी 2, 4, 9, 12। सॉरी 4 के ऊपर कुछ और है, वो शेल है, शेल है, सॉरी माय बैड। सो 2 एंड 12 एंड दैट्स इट। सो 2 एंड 12। सो अब कितने हमें बाइट्स रिक्वायर्ड होंगे बेटा, कैलकुलेट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। सो 8 बाइट्स रिक्वायर्ड। नाउ द थर्ड वर्ड सी, पोजीशन 3, you can see 3, 14 and that's it। 2 जगह यूज हुआ है। so how many bytes? sir 1 2 3 4 5 6, so 6 bytes। fourth character shells, shells and 1 2, कहां कहां पर है? 4th पोजीशन एंड 9th पोजीशन एंड 15th पोजीशन। 3 जगह यूज हुआ है हमारे पास shells। so now how many bytes are required?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बाइट्स ओनली। हाँ 7 भी है। 7 क्या है? एक दो तीन, तीन ही जगह तो यूज हुआ है। ठीक है, 7 के ऊपर सॉरी, अब फिफ्थ के ऊपर आते हैं। फिफ्थ लेटर हमारा क्या होगा? फिफ्थ लेटर इज ऑन। ऑन आई थिंक एक ही दफा यूज हुआ है। सो फिफ्थ पोजीशन एंड टोटल नंबर ऑफ बाइट्स विल बी ऑफ कोर्स 1 2 3, 3 बाइट्स। सिक्स्थ लेटर देखते हैं जरा हम लोग यहाँ पे, एंड द लेटर इज द। एंड द कहां का यूज हुआ है भाई? एक, सिक्स पोजीशन, एट पोजीशन, दो जगह यूज हुआ है, 6 एंड 8। सो 1 2 3 4 5, 5 बाइट्स। Similarly, seventh position is seashore. So seventh, फिर 7 ही हुआ ये। सी शोर, सी शोर और कहीं नहीं है। ठीक है, सो सी शोर आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 बाइट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। एट लेटर द, ऑलरेडी डन, ऑलरेडी डन। दैट आ गया। दैट आई थिंक एक ही दफा यूज हुआ है। सो द पोजिशन इज 10। सो 4 5 6 बाइट्स फॉर दैट। दैट हो गया। शी ऑलरेडी आई थिंक डन। सेल्स डन। आर नहीं आया अभी तक, तो आर इज द नाइन्थ करेक्टर। आर एंड द पोजिशन इज 13। सो 5 बाइट्स। आर के बाद सी हो चुका है, शेल्स हो चुका है, आई नहीं हुआ हुआ था, तो आई हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे 10th पे आई। एंड दिस इज द पोजिशन इज 16, 3 बाइट्स। इसके बाद एम, 11 के ऊपर एम आ गया। एम इज द लास्ट वन। अच्छा श्योर भी आएगा, तो दिस इज 17। सो हाउ मेनी बाइट्स? 4 बाइट्स। एंड द लास्ट लेटर इज 12, दैट इज श्योर। सो 18 एंड हाउ मेनी बाइट्स? 6 बाइट्स। ठीक है, सो अब आप लोग क्या करें? आप लोग सबको एडअप करें। 6 8 6 10 3 5 9 6 एंड ऑल दैट। तो आप लोग देखेंगे सिर्फ एक लाइन के अंदर आप लोगों ने बहुत सारा अपना डाटा क्या कर लिया होगा बेटा? सेव कर लिया होगा आप लोगों ने बहुत सारा डाटा अपना। सिर्फ एक लाइन के अंदर आप लोगों ने क्या किया? अप्लाई किया दिस लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। अगर आप ये पूरे पेज के ऊपर अप्लाई करें, बहुत सारे मल्टीपल पेजेस के ऊपर अप्लाई करें, पूरी बुक के ऊपर अप्लाई करें, सो बहुत ज्यादा आपका साइज क्या होता है? रिड्यूस हो जाता है आपका डाटा का बेटा। ठीक है, सो दिस इज द टेक्निक दैट वी यूज फॉर द लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको वर्डिंग की फॉर्म में कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो बेटा वर्डिंग की फॉर्म में मैंने ये पूरा लिखा हुआ है, मैं आप लोग को यहाँ पे दिखा देता हूं। मैं आप लोग को ये फाइल जब सेंड करूंगा तो ये मैं ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड कर दूंगा दिस टेक्स्ट दैट आई एम एक्सप्लेनिंग यू पीपल। कहीं ना कहीं यहाँ पे होना चाहिए एफ टी ट्रांसमिशन, एफ टी ट्रांसमिशन। मैंने पूरा लिखा था, आई रिमेम्बर। ये पुरानी वाली फाइल है जो मैंने बच्चों को पहले करवा दी थी, तो ये भी आप लोगों को सेंड कर दूंगा मैं। ठीक है, मैं देखता हूँ वहां पे कहीं ना कहीं मैंने सेव किया है वर्डिंग की फॉर्म में, वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा बेटा। ठीक है, सो इसको पूरा वर्डिंग की फॉर्म में एक्सप्लेन करना जब ये आप लोगों के साथ फाइल शेयर करता हूँ। आई थिंक मैंने पास पेपर्स के अंदर ये सॉल्व करवाया होगा क्वेश्चन, वहां पे मैंने जरूर लिखा होगा
तो वो फाइल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा इसके अंदर वर्डिंग फॉर्म में, ताकि आप लोगों को वर्डिंग की फॉर्म में भी लिखना आ जाए। सो इसी के साथ हमारा आज का रिवीजन सेशन फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ द डाटा कंप्लीट होता है। वी हैव सीन द पैरिटी चेक, वी हैव सीन मल्टीपल checks, we have seen checksum, we have seen ARQs, we have seen serial, half duplex, full duplex, और we have seen ICs and USBs के बारे में भी हमने डिफरेंसेस देखे, और हमने मल्टीपल क्वेश्चंस क्या करें पासवर्ड्स के टॉपिक के सॉल्व करें। सो आज इसको हम यहीं तक होल्ड करेंगे। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास के अंदर हम इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करते हैं, और अगली क्लास में जो हम लोग टॉपिक पढ़ने जाएंगे, दिस टॉपिक इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। ठीक है, एंड स्टिल आप लोग अगर कोई पासवर्ड सॉल्व कर रहे हो, आप लोग शॉर्ट के ऊपर सारा एक्सेस कर सकते हैं। अगर आप लोग सॉल्व करते हुए कोई पासवर्ड के अंदर कोई प्रॉब्लम हो या कोई क्वेश्चन हो, तो फील फ्री टू आस्क ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, और आप लोग वहां पे अपनी क्वेश्चंस को क्वाइरीज को क्लियर अप कर सकते हैं बेटा। तो आज को यहीं तक होल्ड करते हैं, इंशाल्लाह अगली क्लास में आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। अच्छा जी, हाँ, ओके, वी हैव फ्यू क्वेश्चंस, लेट मी आंसर द क्वेश्चंस क्विकली। सर ईयरली पेपर में लिखा था आपने, 2019 का पेपर था आरिल, मैं चेक कर लूंगा बेटा। मिर्जा अब्दुल्ला ने 71 बाइट्स हमें यहाँ पे आंसर कर दिया। सर आई नीड टू आस्क अ क्वेश्चन, क्वेश्चन लिख दिया करें, बोला नहीं किया करें। सर कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस के स्टोरेज वगैरह की उसकी क्लास रखिएगा प्लीज। अली फॉर श्योर, मैंने पूरे क्वेश्चंस बनाए, मैं दिखाऊं तुम्हें जरा, बड़े अच्छे क्वेश्चंस बनाए मैंने। नोटेबिलिटी का है मेरा। FT मेमोरी है ये वाला, आई थिंक ये वाला नहीं, मेमोरी हाँ यही है शायद। नहीं, ये वाला पार्ट नहीं है। एक मैंने मेमोरी का क्वेश्चन सेपरेट करे, मैं करवाऊंगा बेटा मैं, ठीक है। व्हाट अबाउट प्री रिलीज मटेरियल, बेटा अब तो सिर्फ पेपर 1 है आमना, सो नो नीड टू वरी अबाउट प्री रिलीज मटेरियल। अब प्री रिलीज मटेरियल आप लोग का नहीं आएगा, अब सिर्फ पेपर 1 है, सो वी नीड टू फोकस ऑन पेपर 1। नो नीड टू वरी अबाउट द प्री रिलीज मटेरियल, बिकॉज अब पेपर 2 को आपको कॉन्सेंट्रेट करना ही नहीं है, यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन पेपर 1 बेटा, ठीक है। बिकॉज अब आपके पास एग्जाम्प्टेड है, वो एग्जाम्प्ट ही कर दिया उन्होंने, अब तो एग्जाम्पशन का भी ऑप्शन नहीं दिया उन्होंने, खुद ही एग्जाम कर दिया फॉर एवरी स्टूडेंट। सो यू जस्ट नीड टू फोकस ऑन पेपर 1, सिर्फ P1 की एग्जामिनेशन होगा आपका। हाँ, वन मोर क्वेश्चन, वन मोर क्वेश्चन। सर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस यूट्यूब चैनल, यस आई विल शेयर द ऑन व्हाट्सएप ग्रुप में, आप लोगों के पास शेयर कर देता हूँ, सारी मैंने चीजें बनाई हुई है, सारे रिकॉर्डेड लेक्चर आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ, 2-2 मिनट की वीडियो। सर नेक्स्ट वीक इन दोनों क्लासेस का फिजिकल होंगी जियान, फ्राइडे क्लास आई थिंक फिजिकल होगी, और वो आपकी बाकी ये वाली क्लास मतलब हाइब्रिड ही होगी वो, और ये वाली क्लास आपकी वैसे ही होगी। अली अली फॉर श्योर बेटा, मेमोरी क्वेश्चन करवाऊंगा अलग से बेटा। सो थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। बाकी क्वेरीज और क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।